LOC پر سیز فائر کی خلاف ورزی پر پاکستان کا احتجاج. پاکستان نے لائن آف کنٹرول پر سیز فائر کی ایک بار پھر خلاف ورزی کرنے پر بھارتی ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر لیا. بھارتی وزیر نے LOC پر 11 جنوری کو بلا اشتعال فائرنگ کی تھی جس کے نتیجے میں ایک شہری شہید ہوا تھا. نواز شریف کی لندن میں ہائی ٹی پارٹی. وزیر اعظم عمران خان کا نوٹس. مشیر صحت کا نواز شریف کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان سے رابطہ. نواز شریف کی صحت سے متعلق تفصیلات مانگ لیں. نواز شریف کی ہائی ٹی انجوائے کرنے کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئیں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سعودی عرب پہنچ گئے. کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ان کا استقبال سعودی وزارت خارجہ کے ڈپٹی منسٹر آف پروٹوکول اعظم الیقین پاکستانی سفیر راجہ علی اعجاز نے کیا. سعودی ہم منصب سے ملاقات میں وزیر خارجہ امریکہ ایران کشیدگی سمیت علاقائی امن و استحکام کی موضوعات پر تبادلہ خیال. لاہور ہائی کورٹ نے سابق صدر جنرل پرویز مشرف کیس میں خصوصی عدالت کے قیام کو کالعدم قرار دیتے ہوئے فیصلہ غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دے دیا. فیصلے کے مطابق آرٹیکل 6 کے تحت ترمیم کا اطلاق ماضی سے نہیں کیا جا سکتا. صرف وزیر اعظم کے حکم پر کارروائی آئین کی خلاف ورزی ہے. MQM اور وفاقی حکومت کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار. ذرائع کے مطابق MQM نے اسد عمر کی یقین دہانی پر اپنا فیصلہ تبدیل نہیں کیا. کابینہ میں رہنے کا فیصلہ جہانگیر ترین کی سربراہی میں مذاکرات کے بعد کیا جائے گا. گڈز ٹرانسپورٹرز کا ملک بھر میں ہڑتال ختم کرنے کا اعلان. سندھ حکومت کے ٹرانسپورٹرز کے ساتھ معاملات طے پا گئے. ٹرانسپورٹرز نے صوبائی محکموں کی شکایات کے انبار لگا دیے. ڈرائیونگ لائسنس فیس میں کمی کا مطالبہ منظور. وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس. وزیر اعظم عمران خان نے کہا انضمام شدہ علاقوں کی ترقی حکومت کی اولین ترجیح ہے. انضمام شدہ علاقوں کی عوام انتہائی باشعور ہے. بعض بیرونی عناصر ان علاقوں میں انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم انہیں ناکام بنائیں گے. سوئی سدرن گیس کمپنی کے حکام اور صنعتکاروں کے درمیان مذاکرات کامیاب. معاملات کے حل کے لیے کمیٹی بنانے پر اتفاق. کیپٹو پاور کی 50% گیس بحال کی جائے گی. حج خدمات سر انجام دینے والے پاکستانی رضاکاروں کے اعزاز میں سعودی عرب میں پاکستان حج والنٹیئر گروپ کی جانب سے تقریب کا اہتمام. سفیر راجہ علی اعجاز سمیت دیگر افسران کی شرکت. تقریب میں رضاکاروں کے جذبہ خدمت کو خوب سراہا گیا. HO قاسم آباد صغیر حسین سانگی اور DSP قاسم آباد کی زیر نگرانی کامیاب کارروائی. حیدرآباد کے علاقے قاسم آباد علی پیلس کے قریب موبائل شاپ پر ڈکیتی کی واردات میں ملوث ملزمان گرفتار. ملزمان سے موبائل فون، موٹر سائیکل اور 2 عدد پسٹل برآمد کر لیے گئے. حیدرآباد سے لاپتہ ہونے والے نوجوان تاجر عمران کھتری کی کراچی سے بوری بند لاش برآمد. حیدرآباد میں تاجر سراپا احتجاج. کاروبار بند کر دیا. تاجر یونین کا وزیر اعلیٰ سندھ اور IG سندھ سے قاتلوں کو فی الفور گرفتار کرنے کا مطالبہ. نوجوان تاجر عمران کھتری کی نماز جنازہ کھاتا چوک حیدرآباد میں ادا کر دی گئی. مرید کے میں چند روز قبل حادثے کا شکار ہونے والا زخمی محنت کش اسپتال میں دم توڑ گیا. مقدمہ درج ہونے کے باوجود زیر حراست بس ڈرائیور چھوڑنے پر لواحقین سراپا احتجاج ہو گئے. پولیس کے خلاف شدید نعرے بازی کی لواحقین کا. پولیس کے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس کا مطالبہ. تعلیم کے نام پر حکومت کی جانب سے کروڑوں کے فنڈز مگر گورنمنٹ اسکولز کی حالت میں کوئی سدھار نہیں آتا. کراچی گورنمنٹ ڈگری بوائز کالج ابراہیم حیدری خستہ حالی اور کھنڈرات کے مناظر پیش کرنے لگا مگر کوئی پرسان حال نہیں. ملک بھر میں شدید سردی کی لہر. بارشوں اور برف باری سے مختلف حادثات میں 21 افراد جان کی بازی ہار گئے. کوئٹہ، چمن، مسلم باغ، کان، مہتر، زئی شاہراہ اور دیگر شہروں میں شدید برف باری سے نظام زندگی مفلوج. مسافر بسوں میں سینکڑوں مسافر اور مریض پھنس گئے. چمن شہر اور کوئٹہ چمن درہ کوشک میں گزشتہ روز سے بارش جبکہ پہاڑوں پر برف باری کا سلسلہ جاری. شدید برف باری کی وجہ سے چمن کا ملک بھر سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا. شہر میں بجلی بھی غائب. چمن کی عوام کو سخت مشکلات کا سامنا. السلام علیکم. DNN نیوز کے ساتھ میں ہوں رضوان باسط. ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں. تفصیلی خبریں ہوں گی ایک وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. Mustafa Green Valley, approved by SPCA,
मलिर कैंट से सिर्फ 5 मिनट की मुसाफत पर बिलमुकाबिल जिना एवेन्यू, मेन मोटरवे M9 से मुत्तसिल 120-240 गज के प्लॉट्स। मुस्तफा ग्रीन वैली सरमायाकारी के लिए हर तरह से एक महफूज प्रोजेक्ट है। 24 घंटे आर्म सिक्योरिटी, बाउंड्री वॉल, कुशादा सड़कें, इंतहाई दिलकश लैंडस्केप, पार्क्स और ग्रीन बेल्ट्स, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, मसाजिद, स्कूल्स, अस्पताल, कम्युनिटी सेंटर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। प्रोजेक्ट साइट पर तरक्याती काम तेजी से जारी है। बहुत ही प्राइम लोकेशन पर दौरे जदीद के तकाजों से हम आहा ग्रीन लैंडस्केप प्लानिंग के तहत डेवलप्ड शानदार मंसूबा मुस्तफा ग्रीन वैली। पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की एक बार फिर खिलाफ वर्जी करने पर भारतीय नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब कर लिया है। दफ्तर खारजा में जनूबी एशिया उमूर के डायरेक्टर जनरल जाहिद हफीज़ चौधरी ने भारतीय नाज़िमुल उमूर को तलब करके उन्हें पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया और शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। जाहिद हफीज़ चौधरी का कहना था कि भारतीय इक़दामात खित्ते के अमन व सलामती के लिए ख़तरा बन चुके हैं। भारतीय फ़ौज ने LOC पर कोट कटेर और केराला सेक्टर्स में 11 जनवरी को बिला इख्तियार फायरिंग की थी, जिसके नतीजे में एक शहरी शहीद हो गया था। साबिक वज़ीर आज़म की तस्वीर वायरल होने के मामले का नोटिस लेते हुए पंजाब की वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने उनके ज़ाती मौलिज से राबिता किया है। नवाज शरीफ के हाई टी इंजॉय करने की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से नवाज शरीफ के ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान से नवाज शरीफ के इलाज के बारे में तफसीलात तलब की गई हैं और कहा गया है कि उनकी ताज़ा तरीन मेडिकल रिपोर्ट्स हुकूमत पंजाब को भिजवाई जाएँ। वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने नवाज शरीफ की तस्वीर वायरल होने पर तबसरा करते हुए कहा कि लंदन के अस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में होने वाली मुलाकात के मनाजिर हैं। खाओ पियो बीमारी का इलाज इंतहाई इन्हमाक से जारी है और सारे मरीज बेहतर महसूस कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ईरान के बाद सऊदी अरब पहुँच गए। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में सऊदी दफ्तर ख़ारजा गए, जहाँ सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद ने उनका पुरतपाक खैर मकदम किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात के दौरान मशरक़ी वस्ता में पाई जाने वाली कशीदगी और ख़ित्ते में अमन व अमान की सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के अहम इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। शाह महमूद कुरैशी ने ख़ित्ते में पाई जाने वाली कशीदगी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इस कशीदा सूरत हाल को एतदाल पर लाने और ख़ित्ते के अमन व इस्तेहकाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए ज़रूरी है कि मामलात को सफ़ारती ज़राए बरोए कार लाकर पुरअमन तरीक़े से हल करने पर जोर दिया जाए। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी दूसरे मरहले में सऊदी अरब का एक रोज़ा दौरा मुकम्मल करके ओमान के लिए रवाना हो गए। किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सऊदी वज़ारत ख़ारजा के DG प्रोटोकॉल अब्दुल्ला एम राशिद, सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफ़ीर राजा अली एजाज़ और पाकिस्तानी सफारत खाने के सीनियर हुक्काम ने वज़ीर ख़ारजा को अलविदा किया। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी अपने दौरे ओमान के दौरान सल्तनत ओमान के साबिक़ फरमारवा सुल्तान क़ाबूस बिन सईद के इंतकाल पर शाही ख़ानदान से इजहार ताज़ियत करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक़ सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ केस में खुसूसी अदालत के क़याम को कलअदम करार देते हुए फ़ैसला गैर आइनी और गैर कानूनी करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने परवेज़ मुशर्रफ की सज़ा मुअत्तली के लिए मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तों पर समाअत की। फ़ैसले में परवेज़ मुशर्रफ की दरख्वास्त को मंजूर करते हुए कहा गया कि इस्तिग़ासा वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बगैर नहीं हो सकता। फ़ैसले के मुताबिक आर्टिकल 6 के तहत तरमीम का इतलाक़ माजी से नहीं किया जा सकता। सिर्फ वज़ीर आज़म के हुक्म पर कार्रवाई आइन की खिलाफ वर्जी है। परवेज़ मुशर्रफ ने लाहौर हाई कोर्ट में खुसूसी अदालत की तश्कील को चैलेंज किया था। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं मामलात हमेशा मुज़ाकरात से हल होते हैं। MQM को यकीन दहानी कराई कि मामलात हल कर लेंगे। ज़राए के मुताबिक MQM ने असद उमर की यकीन दहानी पर अपना फ़ैसला तब्दील नहीं किया। ज़राए का कहना है कि काबीना में रहने का फ़ैसला जहांगीर तरीन की सरबराही में मुज़ाकरात के बाद किया जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, असद उमर से मुलाकात हुई, मुज़ाकरात नहीं। मुलाकातों का सिलसिला तो जारी रहेगा।
सिंध हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात हो गए हैं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट्स ने ट्रांसपोर्टर्स के मुतालबात मंजूर करके ड्राइविंग लाइसेंस फ़ीस में जल्द कमी की यकीन दहानी कराई है। फिटनेस, रूट परमिट और दीगर मसाइल हल करने की यकीन दहानी भी करवाई गई है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट्स उवैस शाह ने कहा कि ट्रांसपोर्टर्स के ज़्यादा मुतालबात वफाक से हैं, सिंध हुकूमत से नहीं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में सूबा खैबर पख्तूनख्वा के तरक्याती मंसूबों और इंज़माम शुदा इलाक़ों में तरक्याती मंसूबों की रफ्तार का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में इंज़माम शुदा इलाक़ों की तामीर व तरक्की और उनको मुल्क की दीगर हिस्सों के बराबर लाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इजलास में वफाकी वज़ीर तवानाई उमर अयूब, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा और दीगर सीनियर अफसरान ने शिरकत की। इंज़माम शुदा इलाक़ों में तरक्याती मंसूबों की बिला ताअत्तुल पेशरफ्त को यकीनी बनाने के लिए वज़ारत ख़ज़ाना से मतलूबा फ़ंड्स की फराहमी को यकीनी बनाया गया है। ब्रीफिंग में बताया गया कि हुकूमत इंज़माम शुदा इलाक़ों में तरक्याती मंसूबों पर अमल दरामद को मज़ीद तेज़ करने के लिए फ़ंड्स की फ़ौरी फराहमी के लिए पुरअज़्म है। सुई सदरन गैस कंपनी के हुक्काम और सनतकारों के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। गैस कंपनी के हुक्काम और सनतकारों के दरमियान मामलात के हल के लिए कमेटी बनाने पर इत्तेफाक किया गया है। मुज़ाकरात में तय पाया है कि बंद की जाने वाली सनतें खोली जाएंगी। कैप्टो पावर की 50% गैस बहाल की जाएगी। सनतकार सिराज कासिम ने कहा कि कुछ भी हो जाए सनतों को गैस मिलनी चाहिए। MD सुई सदरन कहते हैं कोशिश होगी लोड मैनेजमेंट का मसला ना हो। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज हज 2019 में खिदमात सरअंजाम देने वाले रज़ाकारों में एजाज़ी सर्टिफिकेट देने की तकरीब का इनेकाद किया गया। हज वॉलंटियर ग्रुप के जिम्मेदारों ने बताया कि सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से गुज़िश्ता कई सालों से दौरान हज खिदमात का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता हज के मौके पर 2500 से ज़ायद रज़ाकारों ने पाकिस्तानी और दीगर गैर मुल्की हज्जाज कराम की खिदमात का फरीज़ा सरअंजाम दिया। तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तानी सफ़ीर राजा अली एजाज ने पाकिस्तानी रज़ाकारों के काम को सराहा। उन्होंने कहा इससे बड़ी इंसानी खिदमत कोई और हो ही नहीं सकती। आपके जज्बा खिदमत की बदौलत पाकिस्तान का नाम भी रोशन हो रहा है। तकरीब में हज वॉलंटियर ग्रुप के कोऑर्डिनेटर अब्दुल्ला असलम, अबरार तनौली, डॉक्टर ज़फ़र इलाही ने रज़ाकारों को एजाज़ी सर्टिफिकेट भी तकसीम किए। हैदराबाद के SHO कासिमाबाद सग़ीर हुसैन सांगी और DSP कासिमाबाद की ज़ेर निगरानी कामयाब कार्रवाई हुई। कासिमाबाद के इलाके अली पैलेस में मोबाइल शॉप पर डकैती की वारदात में मुलव्विस मुल्ज़िमान को मोबाइल फ़ोन, मोटरसाइकिल और 2 अदद पिस्टल समेत गिरफ्तार कर लिया गया। डकैतियों के दौरान पेट्रोलिंग सहरिश नगर के करीब से गिरफ्तार किया गया। मुल्ज़िमान से मोबाइल शॉप पर डकैती की वारदात के दौरान लूटे गए 10 लाख से ज़ायद मालियत के मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिए गए। मुल्ज़िमान ने दौरान तफ्तीश मुख्तलिफ वारदातों का एतराफ़ भी किया। गिरफ्तार मुल्ज़िमान के खिलाफ थाना कासिमाबाद में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हैदराबाद से लापता होने वाले नौजवान ताजिर इमरान खत्री की कराची से बोरी बंद लाश बरामद हुई। ताजिर इमरान खत्री जुमे के रोज़ माल खरीदने कराची आया था। घर वालों के राबता करने पर इमरान खत्री का मोबाइल बंद था। गुज़िश्ता शब उनकी गोलियां लगी बोरी बंद लाश कराची के इलाके सुरजानी टाउन से बरामद हुई। हैदराबाद के ताजिर सरापा एहतजाज हैं। हैदराबाद न्यू क्लॉथ मार्केट समेत तमाम ताजिर यूनियन की जानिब से अपील पर तमाम बाजार बंद कर दिए गए। ताजिर यूनियन ने वज़ीर आला सिंध और IG सिंध से कातिलों को फिलफौर गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। मकतूल की नमाज जनाजा खाता चौक हैदराबाद में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में ताजिर यूनियन समेत इलाका मकीनों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। चंद रोज़ कबल मुरीद के नारोवाल रोड टपियाला दोस्त मोहम्मद के करीब तेज़ रफ्तार मुसाफिर बस की टक्कर से ज़ख्मी होने वाला मेहनतकश चल बसा। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद ज़ेर हिरासत बस और ड्राइवर छोड़ने पर लवाहिकीन तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुरीद के में सरापाए एहतजाज हो गए। लाश को मुर्दाखाने के बाहर रख कर थाना सदर मुरीद के पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन कहते हैं कि पुलिस ने मुबैना रिश्वत के एवज मुकदमे के नामजद मुल्जिम को आज़ाद करके बहुत बड़ी ज़्यादती की है। लवाहिकीन का मुतालबा है कि पुलिस के आला हुक्काम फौरी नोटिस लें और उन्हें इंसाफ दिलाएं। तालीम के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए करोड़ों के फंड्स मुहैया किए जाते हैं मगर उनका इस्तेमाल दिखाई नहीं देता। कराची गवर्नमेंट डिग्री बॉयज़ कॉलेज इब्राहिम हैदरी 1994 में मंजूर हुआ और 18 साल की तवील तामीराती मुद्दत 2012 में पाया तकमील को पहुंचा, लेकिन बदकिस्मती से कॉलेज में रोज़े अव्वल से तालीमी रुझान चल नहीं सका। कॉलेज की इमारत खस्ता हाली और खंडरात के मनाजिर पेश करने लगी है।
مگر متعلقہ حکام لا علم ہیں۔ لالچ میں تدریسی عمل کی بحالی کے لیے کوئی اقدامات نظر نہیں آتے۔ ملک بھر میں بارشوں اور برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ بلوچستان کے 7 اضلاع میں سنو ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ کوئٹہ، چمن شاہراہ، مسلم باغ، کان مہترزئی شاہراہ شدید برف باری کی وجہ سے بند ہے۔ مسافر بسوں میں سینکڑوں مسافر اور مریض پھنس گئے۔ لینڈ سلائیڈنگ سے چترال کا واحد زمینی راستہ لورا لائٹ ٹنل بند ہو گیا۔ چمن شہر، کوئٹہ، چمن درہ کوجک اور گرد و نواح کے میدانی علاقوں میں بارش جبکہ پہاڑوں پر شدید برف باری کا سلسلہ گزشتہ روز سے جاری ہے۔ سردی نے لوگوں کے دانت بجا دیے۔ شہر میں بجلی بھی غائب ہے جس کی وجہ سے عوام کو سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ کوڑک ٹاپ کے پہاڑوں پر شدید برف باری کی وجہ سے کوڑک ٹاپ شاہراہ بھی ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی ہے اور چمن شہر کا ملک بھر سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ چمن سمیت شمالی بلوچستان کے میدانی علاقوں میں بارش جبکہ پہاڑوں پر برف باری کا سلسلہ کل تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ خبروں میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبریں اور اپڈیٹس جاننا چاہیں تو وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ dnnpak.com۔ خبر ہم سے ہے۔